Hello friends, I am Ganesh Kikan. Now in this video we will solve problem on pentagonal pyramid. Let us read out the problem statement first. Draw the projections of pentagonal pyramid. Side of base is 40 mm and height 70 mm is resting on the corner of its base. Now as pentagonal pyramid is given resting on corner, so we know top view will be pentagon. In pentagonal pyramid, which thing we have? Base side is equal to 40 mm and axis height is equal to 70 mm. So nomenclature will be base will be A, B, C, D, E, apex will be O, O will be joined with point A, B, C, D and E, and axis will be OS. Okay, and it is resting on one of its corner. So let us assume that initially it is resting on base. Okay, so top view will be a pentagon. Okay, you know how to draw pentagon. Go for pentagon. Number of sides will be 5. Enter. Polygon by edge. Then by keeping ortho mode on, side will be how much? 40. Enter. Okay, so in this way you will be having pentagon. Now once we have pentagon, next task is what? Join all corners with the center of polygon. Okay, so join all corners with center of polygon. You will be getting O comma S here. This is A B C D E. Then have projections here, vertical line. This will give you A dash comma B dash. This will give you C dash comma E dash. This will give you D dash. Then this axis will give you S dash point here. Now once you get these points, okay, height of object is how much? 70. So from point S dash I will draw vertical line. Length of line is equal to 70 mm. Okay, and once we have this, you will be getting point O dash. Join O dash with A dash comma B dash, C dash comma E dash and D dash. Okay, so this is my step number 1. And pentagonal pyramid is resting on HP on one of its base corner. तो ये साइड पे क्या है? On this side we have edge AB. On this side we have corner. So as it is resting on corner, it will be resting on corner D. Okay, because on opposite side we are having edge, so it will be resting on corner D. Okay, so it is resting on corner D. Okay, now next problem statement क्या है? The slant edge containing that corner. अब स्लांट एजेस कौन से रहते हैं? स्लांट एजेस आर ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी एंड ओ ई. तो हमने रेस्टिंग कॉर्नर कौन सा बोला है? पॉइंट डी इज रेस्टिंग कॉर्नर. तो स्लांट एज कंटेनिंग कॉर्नर विल बी दिस. दिस इज स्लांट एज ओ डी. ओ डी. और ओ डी क्या कर रहा है? स्लांट एज इज मेकिंग 60 डिग्री टू दी एच पी. ये जो स्लांट एज है ये एंगल कितना बनाना चाहिए? 60 डिग्री. तो फिलहाल हमने ये पोजीशन में ये मेजर किया एंगल कितना है? ये 116. तो इसको इस तरह से टिल्ट करना है. सो एंगल बिकम्स 60 डिग्री. तो क्या करूंगा? आई विल कॉपी दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, आई विल प्लेस इट हियर. आगे प्लेस करूंगा मैं. देन अगेन आई विल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, राइट क्लिक, रोटेट. अब ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है कौन से डायरेक्शन में? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हाउ मच वी नीड टू रोटेट? यहाँ पे एंगल कितना है? 116. फाइनली होना चाहिए 60. मतलब 116 माइनस 60. सो वी नीड टू रोटेट इट बाय 56 डिग्री. तो आगे ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करो. उसके बाद सेंटर ऑफ रोटेशन विल बी पॉइंट डी. और रोटेट कितना करोगे क्लॉकवाइज? मतलब निगेटिव एंगल -56. तो ये इस तरह से उसका ओरिएंटेशन हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू विल बी डूइंग? यू विल बी ड्राइंग प्रोजेक्टर्स. ठीक है, फ्रॉम ए डैश बी डैश S dash, C dash, comma E dash, D dash, and O dash. Then all horizontal projectors you will be drawing from top view. ठीक है, फर्स्ट टास्क क्या है आपका? टू लोकेट ऑल दी पॉइंट्स. सारे पॉइंट्स लोकेट किया. कौन से सारे पॉइंट्स? मतलब ए बी सी डी ई एंड ओ एस. ओके, नाउ वी विल फॉलो रूल्स ऑफ विजिबिलिटी. क्या? सबसे पहले ड्रॉ बाउंड्री ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज बाउंड्री इज ऑलवेज विजिबल. कोई भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन है तो ऑलवेज विजिबल. तो आउटलाइन विल बी व्हाट? ओ ई, then EA, then AB, then BC, then this thing is CO. ये मेरा बाउंड्री है. ठीक है, दिस इज माय स्टेप नंबर 1. ये ड्रॉ कर लिया. देन व्हाट नेक्स्ट? सी वेदर पॉइंट्स आर देयर इनसाइड बाउंड्री और नॉट. कोई पॉइंट बाउंड्री के अंदर है क्या? कौन सा पॉइंट है? पॉइंट डी इज देयर इनसाइड. तो ऑब्जर्वर कहाँ पे? मैंने जहाँ पे कर्सर रखा है एट दैट प्लेस वी हैव ऑब्जर्वर. तो डी पॉइंट कहाँ पे? डी पॉइंट इज, यू सी, point D is away from observer. When
if at cursor point there is observer, तो D क्या है? D is resting point. Point D is away from observer. मतलब all lines passing through D. You see all these lines. All these lines will be dotted lines. Okay. Now these lines are dotted. Apart from this, again two lines are remaining. Which one? OA and OB. ठीक है. Then step number 3. Go for edges. ठीक है. तो जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ओ ए एंड ओ बी कहाँ पे? हियर यू सी ओ डैश ए डैश एंड ओ डैश बी डैश. Both the edges are very close to observer, due to which OA and OB, OA and OB will be visible. So shown by dark line. ठीक है. So this is my step number 2. तो क्या हुआ? Slant edge containing corner makes an 60 degree with HP. ठीक है. आगे देखो स्टेटमेंट क्या है. प्लेन कंटेनिंग एक्सिस एंड स्लांट एज. ठीक है. तो वर्टिकल प्लेन, तो प्लेन क्या दिखेगा? प्लेन दिखेगा एज ए लाइन. एक्सिस एंड स्लांट एज, तो स्लांट एज क्या है मेरा? ओडी. एंड एक्सिस, एक्सिस क्या है मेरा? ओएस. तो प्लेन कंटेंट बाय ओडी एंड ओएस. दिस प्लेन, ये प्लेन जो है जिसमें ये दो लाइन आने वाले हैं, ठीक है, दिस प्लेन इज मेकिंग हाउ मच एंगल? दिस प्लेन इज मेकिंग 45 डिग्री विथ वीपी. तो 45 डिग्री विथ वीपी. अभी क्या है वो प्लेन? पैरेलल टू एक्स वाई. अभी क्या है? पैरेलल टू एक्स वाई. तो इसका एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री. तो क्या करूंगा मैं? ये ऑब्जेक्ट को कॉपी करूंगा आगे एंड आई विल रोटेट ऑब्जेक्ट. ठीक है. रोटेट ऑब्जेक्ट अबाउट पॉइंट ए सपोज. ठीक है. रोटेट किया. कितना रोटेट करना पड़ेगा? बाय 45 डिग्री. तो मैंने उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, सो -45. एंटी क्लॉकवाइज किया तो भी चलेगा. ठीक है. योर ओरिएंटेशन विल बी डिफरेंट बट आंसर इज वैलिड. ठीक है. यू कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस आल्सो. ओके. तो यहाँ पे मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया एंड देन दैट प्लेन यू सी ओडी एंड ओएस, that plane is making how much angle? 45 degree. So once we have this, then I will draw projectors from top view and projectors from front view. You see front view से मैंने projectors draw किए. ठीक है. और top view से मैंने projectors draw किए. Once we draw all the projectors, next task is what? First of all, you locate all the points. Points are A dash, B dash, C dash, D dash, E dash and O dash, S dash. Now once we locate all these points, again follow rules of visibility. What are the rules? First rule is draw boundary of object. Boundary of object will be OB, BC, CD, then DE and OE. This is my boundary. ठीक है. बाउंड्री होने के बाद क्या? बाउंड्री के अंदर देखो कोई पॉइंट आ रहा है क्या? तो यू कैन फाइंड दैट पॉइंट ए इज देयर इनसाइड बाउंड्री. ऑब्जर्वर कहाँ पे? जहाँ पे कर्सर रखा है मैंने अभी यहाँ पे. एट दिस प्लेस आई एम हैविंग व्हाट? एट दिस प्लेस आई एम हैविंग ऑब्जर्वर. तो ये ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो पॉइंट ए कहाँ पे? पॉइंट ए इज व्हाट? पॉइंट ए इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. मतलब ऑल लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ए विल बी डॉटेड. ठीक है. इसके अलावा स्टेप नंबर 3, सी इफ एनी एजेस आर रिमेनिंग. तो रिमेनिंग एजेस आर व्हाट? ओसी एंड ओडी. दीज टू एजेस आर रिमेनिंग. तो जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ ऑब्जर्वर इज हियर, यू सी ओसी, दिस ओसी एंड दिस ओडी, बोथ एजेस आर क्लोज टू ऑब्जर्वर. तो ओसी एंड ओडी आर विजिबल, तो शोन बाय डार्क लाइन. ठीक है. तो इस तरह से माय ऑब्जेक्ट इज कंप्लीट एंड एक्सिस आई विल बी शोइंग बाय सेंटर लाइन. ठीक है. तो इन दिस वे क्या? ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर D, then this slant edge containing corner D is OD is making angle 60 degree and plane containing OD and OS is making 45 degree. So all these conditions are satisfied. Okay. I hope you have understood the problem. Thank you.